मिस्टर पुरी, मैं इस पर आपसे थोड़ा एक कॉन्ट्रेरियन सवाल पूछना चाहूँगा। ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है इस सरकार से, और उसकी एक वजह शायद ये भी है कि जब मिस्टर मोदी आए थे उन्होंने यही सारा प्रॉमिस किया था, ग्रोथ, ब्लैक मनी को टारगेट करना, जो एनिमल स्पिरिट है उसे वाकई फिर से रिवाइव करना, ये सारी चीज़ें जो प्रॉमिस हुई थी। क्योंकि अब देखिए जीएसटी दे मैनेज टू समहाउ पुश थ्रू, अब हो सकता है डिलेड हो लेकिन इस साल लागू हो जाएगा। डिमोनेटाइजेशन उन्होंने किया और कई कदम, जैसे रसेश भी बता रहे थे, वो सरकार ने लिए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिए हैं। सो इज़ इट दैट टू मच इज़ बीइंग एक्सपेक्टेड एंड इंडस्ट्री इज़ नॉट मैचिंग अप? आपका न्यूट्रल व्यू क्या है इस पर? एक्सपेक्टेशंस तो हैं और होने चाहिए, बिकॉज दिस गवर्नमेंट वाज इलेक्टेड ऑन अ प्रॉमिस ऑफ रिफॉर्म एंड गुड गवर्नेंस, सो द electorate has to hold it accountable for that purpose. So expectations must remain very high, and I'm optimistic that this is understood by the government. You know, हमारी economy में बहुत tailwinds भी हैं. Compared to the rest of the world, we still have, as we've discussed, domestic consumption. We still have 6.5% growth even after demonetization. Correct. Maybe next year the budget will talk about 7.3 to 7.5. We'll have to see. We can't afford the fiscal slippage. I agree with Navneet on that completely. But उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि if you believe the story on increasing tax receipts and expanding tax base, then we don't have to have fiscal slippage in order to have a demand stimulus. The one thing missing is this animal spirits or feel good and so on, which has to bring investments back. That has been the missing element in our economic recovery. Some part of that can be met through foreign investment, FDI, but eventually that engine has to be driven by a combination of public sector, infrastructure investment and the private sector following very strongly. Otherwise, we will not have a sustainable growth path. So, it's my hope that the FM fully understands this and that as he lays out his plan, he will address these issues. Correct. In this sequence is the only sequence in which we can grow this country, and as Arun says, provide jobs. Without which it's not just a matter of politics, it's a matter of fundamental livelihood for most people, whether or not their children are going to in fact have a better future or not. So it's vital that they address that. So we must keep our expectations high. We must hold this government accountable for the promises that have been made. And for now, I'm very optimistic that you will see, therefore, a very positive, transformational set of initiatives, which will start with the budget, but will continue for the next several years. So it's a watershed. In my view, what we are at this point in India, at a genuine watershed, where having taken such a bold move as demonetization, I think this government is signaling that it is ready to move on at a much quicker pace. And that is going to be very positive for our markets, I hope, and very positive for the economy. So in that case, Navneet, can we expect a post-budget rally? जो मिस्टर पुरी ने कहा वो सब हुआ तो कई फैक्टर्स होते हैं। अगर आपको मैं लास्ट ईयर के बिगिनिंग में बोलता है कि इस साल बैंक्रप्सी कोड पास हो जाएगा, जीएसटी पास हो जाएगी, रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल पास हो जाएगा, आधार बिल पास हो जाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बन जाएगी, इतना कुछ हो जाएगा और उसके बाद भी मार्केट्स में रिटर्न नहीं आया बिकॉज अर्निंग्स नहीं आए, कॉर्पोरेट अर्निंग्स नहीं आई। आई थिंक ये साल भी, हालांकि सबका ध्यान रहेगा, यूरोप में बहुत इलेक्शंस है, ट्रम्प क्या करते हैं, चाइना में क्या होता है, ऑयल प्राइसेस क्या होते हैं, इंडिया में यूपी इलेक्शन, बजट, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बजट के बाद रहेगी इस साल के रिटर्न्स पे कॉर्पोरेट अर्निंग्स आती है क्या। अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स नहीं आती है तो अगर पॉजिटिव माहौल है तो भी रिटर्न्स नहीं आ सकते। 2 साल से हर साल के बिगिनिंग में ऐसा होता है कि शुरू में आप सोचते हो इस साल 15-20% ग्रोथ आएगी, साल के अंत में आते आते आपको लगता है तो जीरो ही आई। तीसरे साल मेरे ख्याल में मार्केट वो होप पे नहीं चल सकता है। इस साल कॉर्पोरेट अर्निंग्स विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट बजट उसमें हेल्प कर सकता है। अगर जैसा सब लोग बोल रहे हैं, अगर कुछ ऐसे मेजर्स हैं जिससे कंजम्पशन रिवाइव होता है, अगर अफोर्डेबल हाउसिंग पे जोर से अगर ध्यान जाता है, रूरल इकोनॉमी रिवाइव होती है, अगर वापस इन्वेस्टमेंट साइकिल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से रिवाइव होता है, उन सब से ऑटोमेटिकली जो सेक्टर्स प्रॉब्लम में है वो सेक्टर्स आ जाएंगे। बैंक्स को एक बहुत बड़ा एडवांटेज आ गया कि इतने बड़े डिपॉजिट फ्लो हो गई, रेट्स नीचे आ गई। अगर थोड़ा भी माहौल ठीक होता है, जो फील गुड फैक्टर आता है, लैंडिंग जोर से बढ़ सकती है। रेट्स बहुत नीचे है, पिछले 25 साल में हमने 2 ही बार देखा है जब मोर्टगेज रेट 8% के नीचे चली गई। अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग में 2-3-4% का सबवेंशन दे रहे हो और अगर सस्ते घर बनते हैं तो लाखों लोग ले लेंगे और वो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी को रिवाइव कर सकता है, तो वो हेल्प कर सकता है, वो पूरा बॉटम्स अप रिवाइव करेगा। रसेश, अर्निंग्स पर आपका व्यू क्या है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर?
आई थिंक ऑल्सो अग्री। एक्चुअली क्या है, हम जो अर्निंग्स की बात करते हैं वो पूरा मार्केट की अर्निंग्स की बात करते हैं, लेकिन जो मार्केट में पॉकेट्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल साइक्लिकल इंडस्ट्रीज के अर्निंग्स अच्छे इंप्रूव होने वाले हैं। हमने ऑलरेडी देखा है स्टील के प्राइसेस इंप्रूव हो रहा है, स्टील में एबिटा पर टन इज हैज़ बीन गोइंग अप एवरी क्वार्टर। तो ये आई थिंक सेक्टर टू सेक्टर होगा, लेकिन ओवरऑल अर्निंग्स अभी भी म्यूटेड ही होंगे बिकॉज कंजम्पशन स्लो डाउन है, इन्वेस्टमेंट साइकिल स्टार्ट नहीं हो रही है। लेकिन जो इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे उससे भी थोड़ा मोमेंटम मिलेगा। लेकिन आई थिंक अर्निंग्स, हमारा भी ये मानना है कि रियल ग्रोथ इन अर्निंग्स 18 के बाद आएगा। और वो एक्चुअली अच्छा भी है क्योंकि उस टाइम इलेक्शन भी आते होंगे तो शायद उसका भी फील गुड फैक्टर आ जाएगा। तो इसमें एक ही कहावत है कि अर्निंग्स मार्केट को ऊपर जाने से रोकेगी और लिक्विडिटी मार्केट को नीचे जाने से रोकेगी, बिकॉज मार्केट में लिक्विडिटी बहुत है। Correct. ये जो म्यूचुअल फंड में SIP आ रहे हैं, ये जो फ्लो आ रहा है, क्योंकि अभी और कोई इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज भी नहीं है, रियल एस्टेट स्लो डाउन हो गया है, गोल्ड में इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ा बॉन्ड मार्केट में है और इक्विटी मार्केट में है। तो ये बॉन्ड और इक्विटी मार्केट में ही आई थिंक इन्वेस्टमेंट आएगा। तो बहुत जोर की लिक्विडिटी है लेकिन अर्निंग्स नहीं है। बिल्कुल। मिस्टर खुराकेला, आपके लिए मेरे पास स्पेसिफिकली एक सवाल है। आपको इस समय ज़्यादा डर किन से लग रहा है, मिस्टर ट्रम्प से या मिस्टर जेटली से? सॉरी आपको ज़्यादा डर किन से लग रहा है, मिस्टर ट्रम्प या मिस्टर जेटली से? डर की तो बात नहीं है। मिस्टर जेटली से तो डर की बात नहीं है, वो तो होपफुल है बिकॉज उसको ग्रेट अपॉर्चुनिटी है ये बजट में तो ब्रिंग अबाउट मेजर चेंज, and I believe that he will do that, basically. Yeah. And I think to predict what Mr. Trump will do, you need a God only to tell you. Even God might fail, you never know. Because he thinks like a near God, you know. So I call that godliness he has. नंदा आप मजाक करना चाहेंगे इसमें? नहीं, आई वॉज रिमेम्बर्ड ऑफ अ जोक। किसी ने पूछा कि व्हाट हैपेंड टू डेनिस, तो डेनिस पूछ also उसको ट्रम्प की फ़ोटो लगा दी। नहीं, देखिए ऐसा है कि आई गो बैक, ट्रम्प फैक्टर पे आई थिंक IT और अदर पीपल में हैव लिटिल इफेक्ट। हमारी एक्सपोर्ट्स टू अमेरिका, इफ यू लुक एट आवर ट्रेड, इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट अस। आई स्टिल फील and I'm confident that Mr. Modi understands what is required. He has brought his state when he was the chief minister. He will have to take some bold decisions जिससे feel good factor आएगा. See, fundamentals of the economy are still good. You know, savings rates. But we all agree that demonetization was a bold move in a way. So I don't know whether it was a reaction to the tax scheme or, you know, because we only got 60,000 crores, उसमें से भी कुछ कहते हैं. But whether demonetization helped or not, the jury is still to be out. True. Because we don't even know what came, what did not come. But what it has done for positive thing is कि ये जो आपने बोला, जो छोटी क्लास के जिनको कैश को काम होता है, प्रोफेशनल्स हैं जो फीस लेते हैं रोज़ की उसकी, दीज पीपल आर एक्चुअली थिंकिंग कि यार छोड़ो झमेला, बट देन यू हैव टू ब्रिंग द रेट डाउन सो दैट ही डज नॉट, बिकॉज 25% रेट होएगा, वो बोलेगा यार इट इज़ बेटर टू स्लीप पीसफुली। करेक्ट। वो पान वाला भी देगा, वो भी देगा। यू हैव टू गेट दोज पीपल इन टू द टैक्स दैट एंड दैट विल हेल्प। बट इफ आई वॉज टू समराइज, सब कुछ बजट से नहीं आएगा। मेरे हिसाब से नंबर 1, गवर्नमेंट हैज़ टू किक स्टार्ट। नंबर 2, you have to make sure that the environment is right for the private sector to spend, create jobs. You have to raise domestic demand, uska, or ease of doing business has, you know, while in Delhi things have improved, you will not see a 4G type of scam or you will not see a coal type of scam. But operationally, if you go yourself to a municipality or to a talati, life has not changed. In fact, it has become more difficult. Right. And people have to feel confident कि ये मेरा देश है, मेरे को यहाँ रहना है। वो जो सबसे बड़ा मेरे को डर लग रहा है कि जो बड़े एंटरप्रेन्योर थे
वो कहते हैं कि अरे यार एक पाँव बाहर होना चाहिए. दैट आई थिंक इज द बिगेस्ट वरिंग थिंग, more than the jobs that are not being created and unemployment. You know, according to me, I'm not a politician again, there is no Patidar problem, there is no Gujjar problem, there is no Jat problem. It is job problem. Job problem, correct. Right. Mr. Rathi, final remarks from you and then we'll close. मेरा मानना है कि अभी अपॉर्चुनिटी जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं दे आर वेरी गुड. बेसिकली इंटरेस्ट रेट्स कम हैं, इन्फ्लेशन कम है, जनधन योजना के बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हो गए हैं, तो एफिशिएंसी ऑफ यू नो ऑल दी सब्सिडीज हैज़ ग्रेटली इम्प्रूव्ड. एंड आफ्टर डिमोनेटाइजेशन और ज़्यादा एक डिजिटल इकोनॉमी, तो यू नो द मनी अवेलेबल इन दिस सिस्टम इज़ वेरी गुड विच इज़ फॉर ग्रोथ. तो एक बहुत बढ़िया बैकग्राउंड है अभी सरकार के पास, और इस बजट में अगर राइट मूव्स आते हैं तो आई थिंक इकोनॉमी विल डेफिनेटली अप स्टार्ट. और मेरा मानना है कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट डिमोनेटाइजेशन के शॉर्ट टर्म अपने को ये फील हो रहा है. आगे जाके एक आपकी टैक्स की कंप्लायंस बढ़ेगी, टैक्स रेवेन्यूज बढ़ेगी, आपका यू नो डूइंग एटलीस्ट ट्रांजैक्शंस विल बिकम परहैप्स ईजियर एंड चीपर. तो आई सी इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर दिस बजट टू बी वेरी प्रोएक्टिव. कंजम्पशन उसमें ग्रोथ कैसे आए, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ कैसे आए, उसके लिए आई थिंक दिस कैन डू रियली वेल फॉर द इकोनॉमी. एब्सोल्युटली. सो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बजट वाकई देश की तकदीर बदलेगा. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए. एंड 1 Feb D-Day है, उस पर हमारी नज़र रहेगी. थैंक यू.